Good morning, students. Welcome back to PNMRC e-learning classes. Students, today we are going to learn chapter number 12. Topic is friction, and today is part 3 of this chapter. We are going to start this video with the topic types of friction. There are 3 main types of friction, and they are static friction, sliding friction and rolling friction. Now, what is static friction? Static friction is the friction exerted on an object at rest. What is sliding friction? Sliding friction is the friction exerted when an object slides over a surface. Third one is rolling friction. Rolling friction is the friction exerted when an object rolls over another surface. Students, sliding friction is slightly less than static friction, and rolling friction is less than sliding friction and static friction. Students, as you can see in the picture, first one is static friction. Second picture is of sliding friction, and third picture is of rolling friction. Now students, we will learn all these 3 frictions one by one in detail. First one is static friction. Now what is static friction? The maximum frictional force present between any two objects when one object just tends to move or slip over the surface of the other object is called static friction. Static friction is a kind of starting friction because an object just tends to start moving. It does not actually move. The object remains static, means stationary in this case. Static friction comes into play when we try to move a stationary object which is at rest. Students, please note that in the case of static friction, the object is actually not moving or sliding over other object, it just only tends to move or slide. तो static friction हम उसको बोलेंगे जब कोई object मूव करना स्टार्ट कर रहा होता है, मूव नहीं किया होता है, मूव करना स्टार्ट कर रहा होता है, तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फ्रिक्शन लगता है दैट इज कॉल्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन. Now second one is sliding friction. What is sliding friction? The frictional force present when one object moves slowly or slides over the surface of another object is known as sliding friction. हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन उसको कहेंगे जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर स्लोली स्लाइड करता है. जैसे कि हम लोग कभी कोई बच्चा अगर फिसल पट्टी के ऊपर स्लाइड करता है, दैट इज कॉल्ड एज स्लाइडिंग फ्रिक्शन. Thus, sliding friction comes into play when an object is sliding or moving slowly but continuously over another object. Since sliding friction is smaller than the static friction, it is easier to keep an object moving which is already in motion than to move the same object from rest. तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से कम लगता है, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम लगता है दो ऑब्जेक्ट के बीच में. Now third friction is rolling friction. What is rolling friction? When an object like a wheel rolls over the surface of another object, the resistance to its motion is called rolling friction. जब कोई ऑब्जेक्ट किसी व्हील के ऊपर रोल करता है, जैसे सपोज करो मैं किसी बुक के नीचे अगर पेंसिल्स रख दूं और फिर उसको रोल करूं उस बुक को उस पेंसिल्स के ऊपर, तो वो उसको मेरे को आसानी से मैं उसको रोल कर पाऊंगी. दैट इज़ कॉल्ड एज रोलिंग फ्रिक्शन. It is always easier to roll than to slide an object over another object. तो रोल करना ज़्यादा इजी है इस स्लाइड करने के मुकाबले. स्लाइड मतलब खिसकाने के मुकाबले किसी सब ऑब्जेक्ट को रोल करना ज़्यादा आसान है. सो रोलिंग फ्रिक्शन इज़ मच लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है. When an object rolls over another object, then rolling friction comes into play between them. जब कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर रोल करता है
तो हम क्या कहेंगे उसको, रोलिंग फ्रिक्शन। और रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। Heavy machines can be easily moved from one place to another by placing round logs of wood under them and then pushing with the force of hand. अगर कोई हैवी मशीन है जिसको हमें एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, तो उसके नीचे अगर हम वुडन लॉग्स रख देंगे और फिर उस मशीन को उसके ऊपर रोल करेंगे, तो वो हम उस मशीन को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा पाएंगे। तो हमेशा बच्चों रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के फायदे क्या क्या हैं? फ्रिक्शन इज नेसेसरी बिकॉज इट हेल्प्स अस इन परफॉर्मिंग मैनी ऑफ आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज। Friction is useful to us. First one is friction enables us to walk without slipping. मतलब हम ज़मीन के ऊपर या हम फ्लोर के ऊपर आसानी से मूव कर सकते हैं विदाउट स्लिपिंग बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। वी आर एबल टू वॉक ऑन ग्राउंड बिकॉज फ्रिक्शन बिटवीन द सोल ऑफ आवर शूज एंड ग्राउंड प्रिवेंट अस फ्रॉम स्लिपिंग ओवर द ग्राउंड। हम लोग ग्राउंड के ऊपर आराम से वॉक कर सकते हैं बिकॉज देर इज़ अ फोर्स दैट इज़ एक्टिंग बिटवीन द सोल एंड द ग्राउंड एंड दैट इज़ फ्रिक्शनल फोर्स, जिसकी वजह से हम स्लिप नहीं होते और हम आसानी से ग्राउंड के ऊपर मूव कर सकते हैं। वॉकिंग ऑन स्लिपरी ग्राउंड इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन स्लिपरी ग्राउंड इज़ मच लेस। बस अगर ग्राउंड स्लिपरी है तो हमको उसके ऊपर वॉक करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वहाँ पर कम एक्ट कर रही होती है और हम क्या करेंगे, वॉक नहीं कर पाएंगे बल्कि स्लिप हो जाएंगे। विच में नॉट बी सफिशिएंट टू प्रिवेंट अस फ्रॉम स्लिपिंग, जिसकी वजह से अगर मान लीजिए फ्रिक्शनल फोर्स कम है, ग्राउंड स्लिपरी है, तो हम उसके ग्राउंड के ऊपर आसानी से मूव नहीं कर पाएंगे बल्कि स्लिप हो जाएंगे और हम वॉक भी नहीं कर पाएंगे। Second advantage of friction is friction enables a car to move on road without skidding. फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से कार आराम से रोड के ऊपर मूव कर सकती है बिना फिसले हुए। The friction between tires of a car and the road enables a car to move forward on the road. If there were no friction between car tires and road, then the wheels of car would spin at the place but the car would not move to forward at all. The car would stay where it is. इसका मतलब है कि अगर फ्रिक्शन जो है कार और रोड के बीच में एक्ट नहीं कर रहा होता है तो कार आगे मूव नहीं कर पाएगी, एक ही जगह पर वो स्पिन करती रहेगी। तो ये फ्रिक्शन की वजह से ही कार जो है वो रोड के ऊपर मूव कर पाती है। Third advantage of friction is friction enables us to apply brake and slow down or stop a moving car. थर्ड एडवांटेज है कि फ्रिक्शन की वजह से ही अगर हम ब्रेक्स अप्लाई करते हैं किसी भी व्हीकल के अंदर तो वो स्टॉप हो जाती है। अ ब्रेक्स ऑफ अ कार वर्क्स ऑन फ्रिक्शन। When the brake are applied to the running car by pushing the brake pedal, the brake pad press against the disc of a rotating car wheel, thus produce friction between brake pads and the disc, making the wheel to slow down and ultimately stop. तो अगर हम कार को ब्रेक लगाना चाहते हैं तो जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं तो जो ब्रेक पैडल हैं वो व्हील्स के बीच में डिस्क से एक्ट करके उसको रोक देते हैं और जो हमारा व्हील है वो अल्टीमेटली स्टॉप हो जाता है। इफ़ देयर वर नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन ना हो, देन वंस अ व्हीकल स्टार्ट मूविंग इट वुड नेवर स्टॉप। तो कोई व्हीकल अगर चलना स्टार्ट होगी तो वो चलती ही चली जाएगी, कहीं पर भी जाकर रुकेगी नहीं। तो किसी भी चीज़ को अगर स्टॉप करना है तो उसके लिए फ्रिक्शनल दो ऑब्जेक्ट के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स का होना ज़रूरी है। Fourth advantage of frictional force is friction enables us to write and draw on paper. Friction की वजह से हम पेपर के ऊपर लिख सकते हैं और कुछ भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन जो है पेंसिल या पेन और पेपर के बीच में एक्ट कर रहा होता है जिसकी वजह से हम पेपर के ऊपर लिख सकते हैं। अगर
फ्रिक्शन पेपर के और पेन या पेंसिल के बीच में एक्ट ना कर रहा होता तो हमारा पेन जो था वो पेपर के ऊपर स्लाइड करता और हम कुछ भी नहीं लिख पाते. We are able to write and make drawing on paper because there is friction between the tip of pencil और pen and paper. मैंने जैसा अभी बताया कि हम कुछ भी लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं पेपर के ऊपर, क्योंकि हमारे पेपर के और पेन के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा होता है. We cannot write with a pencil on a glass sheet because the glass surface is very much smooth, due to which the friction between the tip of pencil and surface is much less. हम लोग पेंसिल से अगर ग्लास के ऊपर लिखना चाहें तो हम लिख नहीं पाते, क्योंकि ग्लास की जो सरफेस होती है वो बहुत स्मूथ होती है, और स्मूथ होने की वजह से जो पेंसिल है और ग्लास है उसके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बिल्कुल ना हो ऐसा नहीं होता है, कम होता है, जिसकी वजह से हम ग्लास के ऊपर नहीं लिख पाते. This friction is not sufficient to rub off black graphite particles from the tip of the pencil. क्योंकि ग्लास और पेंसिल के बीच में फ्रिक्शन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट के जो पार्टिकल्स हैं जो कि आपकी पेंसिल के टिप पर होते हैं वो नहीं घिस पाते, और जिसकी वजह से हम ग्लास के ऊपर लिख नहीं पाते. Fifth advantage of friction is friction enables us to light a matchstick. फ्रिक्शन की वजह से हम माचिस के अंदर आग लगा सकते हैं. जब हम रब करते हैं मैच स्टिक को अगेंस्ट द रफ साइड ऑफ द मैच बॉक्स तो क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है बिटवीन द हेड ऑफ द मैच स्टिक एंड द रफ साइड ऑफ द मैच बॉक्स, जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है और आपकी माचिस में आग लग जाती है. So when we rub a matchstick against the rough side of a matchbox, then friction between the head of the matchstick and rough side of a matchbox produces heat. Now this heat burns the chemicals present on the head of the matchstick, due to which the matchstick lights up. ये जो heat produce होती है इसकी वजह से जो chemicals present होते हैं matchstick की head पर, उसमें क्या लग जाती है, उसमें आग लग जाती है और matchstick जलना शुरू हो जाती है. The burning of matchstick would not be possible without friction. अगर friction ना हो तो matchstick का जलना possible नहीं है. Students, I end my video here only. I think you must have understood today's video. We will meet again tomorrow with some interesting topics. Until then, goodbye and thank you.